Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331 4444, 2342 1050 and 2331 0464, and do not forget to prefix 011 before these numbers if you are calling from out of Delhi. Well, my name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज कारोबारी खबरों के साथ साथ आपके प्रश्नों को भी इस कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे। फिर अर्थव्यवस्था हो या फिर शेयर बाजार से जुड़ा कोई भी सवाल, आप हमें सीधा फोन कर सकते हैं इन अंकों पर। ये अंक हैं 23314444, 23421050 और 23310464। दिल्ली से बाहर के श्रोता दूरभाष अंकों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 डायल करना न भूलें। लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। प्रश्नों के उत्तर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ पत्रकार शिशिर सिन्हा। नमस्कार शिशिर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप दोनों को नमस्कार और श्रोताओं को भी नमस्कार। चर्चा शुरू करेंगे शिशिर, मगर उससे पहले हेडलाइंस। Yes, the headlines. India's merchandise trade deficit narrows to $26.49 billion in August this year. Unemployment rate drops to 5.1% in August, declines for the second consecutive month. And benchmark domestic indices end with marginal losses. Sensex declines over 100 points. Nifty settles at 25,069. भारत का वस्तु व्यापार घाटा इस साल अगस्त में कम होकर 26.49 अरब डॉलर पर पहुंचा। बेरोजगारी दर घटकर अगस्त में लगातार दूसरे महीने की गिरावट से 5.1% पर आया और प्रमुख घरेलू सूचकांक मामूली गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 100 अंक से अधिक गिरा, वहीं निफ्टी 25,069 पर बंद हुआ। Market Mantra. Market Mantra. India's merchandise trade deficit narrowed to $26.49 billion in August from $27.35 billion in July. According to provisional data released by the Commerce Ministry today, merchandise exports last month increased to $35.1 billion, registering a positive growth of over 6.7% on an annual basis. As per the ministry, major drivers of the merchandise exports growth in August 2025 include electronic goods, engineering goods, gems and jewelry, petroleum products and drugs, and pharmaceuticals. And on to the next story. India's overall unemployment rate dropped to 5.1% in August 2025, marking the second consecutive month of fall for individuals aged 15 years and above. According to Ministry of Statistics and Program Implementation (MUSPI), monthly labor force and unemployment data, the unemployment rate among the rural male has also declined to 4.5% in August, which is lower than the previous 4 months observed for the rural male. The worker population ratio among females has witnessed a rise for 2 months in a row to 32% in August this year from 30% recorded in June. The minister said the female workforce has increased in both rural and urban areas for the last 2 successive months. और निश्चित दिल्ली से हमारे पहले कॉलर का फोन हमें आ चुका है। पीआर नाथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अपना सवाल पूछिए सर। लगता है तकनीकी दिक्कतों के कारण हमारा संपर्क टूट गया है। दिल्ली से ही हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, इनका नाम है नील कमल। नील कमल जी, अपना सवाल पूछिए।
जी, सबसे पहले मार्केट मंत्र के सभी जो वक्ता एवं जो गेस्ट हैं उन्हें मेरी तरफ से नमस्कार एवं प्रणाम। नमस्कार जी, सर मेरा प्रश्न यह है कि मुझे याद है अपने स्कूल के दिनों में लगभग सन 2011-12 के आसपास $1 और भारतीय रुपए का अंतर लगभग 50 रुपए के आसपास होता था, और आज लगभग 15 साल बीत चुके हैं और जिस तरह से डॉलर अभी 87-88 के आसपास पहुंच चुका है, तो मैं यह जानना चाह रहा हूं कि हम लोग अभी इतना प्रगतिशील हो रहे हैं, देश में इतने दिन प्रतिदिन विकास के स्तर बढ़ते जा रहे हैं, फिर भी हम डॉलर का रेट हमारे रुपए से क्यों इतना बढ़ता जा रहा है? मतलब ये मैं जानना चाह रहा हूँ, क्या एक एप्रोप्रिएट क्वेश्चन होगा इस समय, जो आप अगर मुझे समझा सके इस बारे में। नीलकमल जी, हर सवाल उचित होता है और उसके सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब हम लोग रुपए और डॉलर के विनिमय दर की बात करते हैं तो महत्वपूर्ण बात यह होती है कि हमारी अर्थव्यवस्था का आकार क्या बढ़ा है, मांग किस तरीके से बढ़ी है। देखिए, आज के दिन में हम लोग जिस तरीके से जरूरतें हैं विदेशी वस्तुओं की, खास तौर पे अगर हम कच्चे तेल की बात करें, सोने की बात करें, जिसके लिए हमें भारी पैमाने पर डॉलर में रकम चुकानी होती है। हालांकि कुछ देशों के साथ हमारा जिसे कहा जाए कि रुपए में हमारा व्यापार निपटाने की व्यवस्था है, लेकिन अभी भी आप समझ लीजिए कि दुनिया भर में 40% व्यापार जो है वो डॉलर में निपटाए जाते हैं। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो जाहिर सी बात है कि उसकी कीमत में फर्क तो पड़ेगा ही, और जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा, मांग बढ़ेगी, जैसे जैसे निर्यात और आयात की परिस्थितियां होंगी, उस हिसाब से डॉलर रुपए पर जो है असर पड़ेगा। तो कोई एक स्पष्ट तौर पे हम कहें कि इस वजह से हो गया या हम बहुत ही कमजोर स्थिति में है, वो गलत होगा। सच्चाई यह है कि जरूरत है, इसीलिए उसकी जो आप अंतर देख रहे हैं जो 88 रुपए के ऊपर जा चुका है, उसकी वजह यही है। जी, शिशिर, दिल्ली से ही हमारे साथ राजेश जुड़ रहे हैं। राजेश, अपना सवाल पूछिए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार। शिशिर जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे हम बिस्किट खरीदते हैं सोने का, उस पे भी जीएसटी नहीं लगेगा? इसके बारे में हमें पूछना है। और दूसरा एक सवाल और है, कल ही हमने मार्केट में जाके कुछ जो सामान है उनकी जानकारी ली कि इनके रेट घटेंगे कि नहीं घटेंगे। दुकानदार से पूछा था हमने, एलईडी टीवी के रेट कहता 2-3% ही घटेंगे। हमें मालूम है 28 से 18 हो जाएगा, वॉशिंग मशीन भी घट जाएगी। वो हमें क्या बेवकूफ बना रहे हैं या खुद उनको जानकारी नहीं है? इसके लिए सरकार की तरफ से, जीएसटी की तरफ से कुछ ऐसा प्रावधान होगा कि ये लोग के ऊपर चेक करा जाए कि ये ग्राहक को ठीक रेट जीएसटी घटा के ही दें। पहला प्रश्न जो है कि सोने का बिस्किट भी आप खरीदेंगे, देखिए जो हम लोग विदेशों से सोना हमारे पास आता है उसकी मार्किंग अलग होती है, फिर उसको यहाँ के हिसाब से उसको ढाला जाता है, फिर मार्किंग की जाती है। तो 3% की दर से आपको जीएसटी उस पर देना ही देना होगा, और उसके अलावा उसके ऊपर इम्पोर्ट ड्यूटी है जो आपको चुकाना होगा। दूसरा जो मुद्दा है कि जीएसटी की दरों में कटौती का फायदा आम ग्राहकों को मिलेगा कि नहीं। देखिए, 28 से 18 हो जाना या 18 से 5 हो जाना, ये जो कीमत का अंतिम है पड़ाव, वो इस बात पर निर्भर करता है कि कच्चे माल पर कितना ड्यूटी चुकाई गई, जिसको हम लोग तकनीकी भाषा में इनपुट टैक्स क्रेडिट कहते हैं। तो इन सब के हिसाब किताब से होता है, और सीधे सीधे ग्राहक ये सोचे कि हम 28 से घट करके 18 हो गया तो सीधे सीधे हमारा इतना 10% का फायदा हो जाएगा, उसको थोड़े नए सिरे से सोचना होगा। तो कंपनियां हो सकती हैं कि उसका फायदा किस रूप में देती हैं, ये देखना है। लेकिन अभी की जो परिस्थितियां आपने देखा होगा कि ज्यादातर कंपनियों ने जो है वो ऐलान कर दिया है कि हम इतनी कीमत घटा रहे हैं। चाहे आप एफएमसीजी की बात करें, चाहे आप गाड़ियों की बात करें, सभी की नई कीमतें भी आ गई हैं, और सरकार भी जो है उस पर पैनी नजर रखे हुए है। तो धैर्य न खोएं, आपको सस्ता सामान मिलेगा। जी शिशिर, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Welcome back to Market Mantra. Our next caller is Subrato from Bangalore. Subrato, welcome. गुड इवनिंग टू मार्केट मंत्रा टीम। गुड इवनिंग। मेरा 2 सवाल है। पहला वाला ये है कि मैं इंटरनेट में देखा था, ये जो एनपीएस का है, जो जब मैच्योर होता है 60% विथड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर 60, और 40% से एन्युइटी बाई कर सकते हैं। वो एन्युइटी क्या है, और अगर ये रेगुलर इनकम है, लाइक मंथली बेसिस में कुछ इनकम मिलता है, लाइक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, देन ये दोनों में डिफरेंट क्या है? कौन सा, जैसे कि सीनियर सिटीजन में 8.2% मिलता है, तो इसमें कितना एन्युइटी इनकम में कितना आता है, वो थोड़ा कंपेयर करके मुझे बताइए। और नेक्स्ट है, ये जो राशिया से ऑयल हम बाई कर रहे हैं,
तो भारत भाई कह रहे तो ये ट्रम्प क्यों, अमेरिका क्यों लगा रहे हैं, मतलब इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अमेरिका क्यों लगा रहे हैं, उसका क्या अधिकार है? सुब्रतो जी, पहले सवाल का जो है, जो आपने एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में पूछा है, आप 60 साल की उम्र में जब पैसा निकालते हैं 60% निकालते हैं, और 40% जो एन्युइटी है वो दरअसल पेंशन की योजनाओं में लगाया जाता है ताकि आपको आगे पेंशन मिलता रहे, और उस पे जो दर होती है वो निर्भर करता है कि किस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में वो पैसा लगाया गया है। तो उसका कंपैरिजन अगर हम सीनियर सिटीजन स्कीम से करें वो उचित नहीं होगा। सीनियर सिटीजन स्कीम अपने तरह का अलग योजना है जो कि आप डाकघर में जाकर के एक खोलते हैं, और आज के दिन में वो 30 लाख रुपए तक जो है आप जमा करके उसका फायदा उठा सकते हैं। तो 2 अलग अलग विकल्प हैं आपके लिए, और दोनों के रिटर्न भी जो है वो अलग अलग हैं। एनपीएस के रिटर्न अलग तथ्यों पर निर्भर करते हैं। दूसरा जो आपका प्रश्न है कि रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका हमारे ऊपर क्यों लगा रहा है, ये एक देखिए बहुत बड़ा कूटनीतिक मसला है। इसको मतलब सीधे सीधे ये नहीं कह सकते कि हमारे ऊपर ऐसा हो रहा है, हमारे ऊपर वैसा हो रहा है। एक कूटनीतिक मसला है, और ट्रम्प साहब जो हैं चूंकि वो यूक्रेन के साथ खड़े हैं, और ऐसा लगता है कि यूक्रेन के खिलाफ जो भी हैं उनको उनके साथ जो है, यानी कि उनके जो यूक्रेन के जो दुश्मन हैं, उनके जो दोस्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ये कूटनीतिक मसला है, इसका अर्थ से कोई लेना देना नहीं है। जी शिशिर, दिल्ली से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ रहे हैं, प्रीतम इनका नाम है। प्रीतम, अपना सवाल पूछिए। प्रीतम, आप हमें सुन पा रहे हैं? Probably we have lost touch, and our next caller is N.R. Prasad from Bangalore. Mr. Prasad, welcome. Mr. Prasad, can you hear us? Hello, Yes. this is N.R. Prasad here. Yes. Yeah, please go on with your question. Hi, good evening, Market Mantra. This is N.R. Good Prasad from Bangalore. Good evening. Mr. Sinha, there are 2 questions. My first question is, a company has declared a buyback. Now, my cost of acquisition of that company and the declared price is a difference of about 20%. So, if I sell these my shares, this 20% of profit considered as a dividend, or it will be going to be a capital gains, because most of them are more than 1 year old. My second question is, whatever the changes announced in the GST, whatever the GST number of products gets reduced from 22nd of this month, how will we ensure, how customers can ensure that he is selling at a lower what announced by the government? Thank you. These are my 2 questions. Mr. Prasad, the very short answer to your first question is that it will be treated as the dividend. So accordingly, you will have to pay the tax for whatsoever earning you have, whatsoever difference you have, and you also have to also have to pay according to your slab also. Now, coming to your second question about the GST rate passing on by the companies, of course, the government is saying that they are talking to the companies, and many of the companies have already come out with the advertisement that this much they are going to charge from September 22. And in fact, many of the automobile companies are saying, why do you want to wait till 22nd? You can buy right now, and they are going to give you the benefits. So I believe that the government is in work, and hopefully you will have benefit of the GST rate cut. निश्चित सवालों का सिलसिला हम जारी रखेंगे, मगर उससे पहले वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मार्केट मंत्र में एक बार फिर आपका स्वागत है। लिए चलते हैं आपको दिल्ली की तरफ। दिल्ली से प्रीतम हमें कॉल कर रहे हैं। प्रीतम, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो जी प्रीतम, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम, पहले तो आपकी पूरी टीम को नमस्कार मेरा। जी नमस्कार। मैं पता करना चाह रहा था सर, अगस्त में मुद्रास्फीति 1% से कुछ ऊपर थी, सितंबर में 2% से ऊपर, अब आगे 3% से ऊपर जाने का है, तो जीएसटी घट रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है। सर देखिए, जीएसटी की दरों में जो कटौती की गई वो 22 सितंबर से लागू होगा। अभी जिस आप खुदरा महंगाई दर की बात करें वो अगस्त के आंकड़े हैं, जो कि 2.07% पे थी, और उसके पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि सोने के भाव जो है वो काफी बढ़े हैं, उसका असर पड़ा है। और उसके अलावा कुछ हद तक जो हमने बढ़ोतरी खाने के तेल में देखी है, दाल में देखी है,
और कुछ हद तक जैसे आप कहा जाए कि सब्जियों के भाव जो है वो थोड़ी सी बढ़ी है। तो इन सब का मिला जुला असर है। तो अभी जो आप जीएसटी की दरों की कटौती की बात कर रहे हैं, उसका असर आपको देखने को मिलेगा जब नवंबर के महीने में आंकड़े आएंगे, तब आपको देखने को मिलेगा। And moving on to the next story, India's wholesale price index WPI-based inflation moved into positive zone, ending 2-month negative streak. Wholesale inflation edged up at 0.52% in August on an annual basis from a deflation of 0.58% in July. According to Ministry of Commerce and Industry, positive rate of inflation during last month was primarily due to increase in prices of food products, other manufacturing, non-food articles, other non-metallic mineral products, and other transport equipment. The annual rate of inflation based on the WPI food index rose to 0.21% in August after remaining in the negative territory at 2.15% last month. Manufactured product segment also registered inflation of 2.55%. प्रमुख घरेलू सूचकांक आज घाटे के साथ बंद हुए। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में ही पिछले सप्ताह निरंतर बढ़त नजर आई, मगर इस सप्ताह के पहले दिन ही ये दोनों ही एक्सचेंज फिसलकर नीचे आ गए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 119 अंक घटकर 81,786 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 45 अंक घटकर 25,069 पर बंद हुआ। The benchmark domestic equity indices today ended with marginal losses. Sensex at the Bombay Stock Exchange and Nifty 50 at the NSE both fell, snapping their previous week's winning streak. The Sensex lost 119 points or 0.15% to close at 81,786, while the Nifty declined 45 points or 0.18% to settle at 25,069. सेंसेक्स में शामिल 30 में से 20 कंपनियां घाटे में रही। सबसे ज्यादा नुकसान में रहने वाली कंपनियों के शेयर्स में आते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिसमें कि 1.7% की गिरावट आई। वहीं एशियन पेंट 1.6% और इन्फोसिस 1.1% से अधिक गिरा। सबसे अधिक मुनाफे में रहने वाली कंपनियों की अगर बात करें तो उनके शेयर्स में आते हैं बजाज फाइनेंस, जो कि लगभग 0.7% के लाभ में रहा, और उधर इटर्नल 0.6% और अल्ट्राटेक सीमेंट भी लगभग 0.5% लाभ में रहे। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज $1 की तुलना में ₹6 बढ़कर 88 रुपये 21 पैसे पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाला सूचकांक समाचार तैयार किए जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में 97.38 पर चल रहा था। And our next caller is Amit from Mumbai. Amit, welcome. थैंक यू सर। एक्सपर्ट से मेरा सवाल ये है कि सर ये अभी जब पूछा गया मुद्रास्फीति जो दर है वो क्या होता है, वो कैसी मापी जाती है, और उसके साथ मैं पूछना चाहूंगा कि इन्फ्लेशन बोलते हैं कि इन्फ्लेशन इतना परसेंट है, 6%, 7%, तो दोनों में अंतर क्या है? मैं रेडियो पे सुनता हूँ। थैंक यू। आपने हिंदी और अंग्रेजी दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया। मुद्रास्फीति दरअसल हिंदी के शब्द हैं और इन्फ्लेशन रेट जो है वो अंग्रेजी का है, तो दोनों एक ही चीज है। इसकी जो परिभाषा दी जाती है कि बाजार में जब बहुत ज्यादा नकदी लोगों के हाथ में आ जाती है और बाजार में किसी भी चीज की आपूर्ति कम हो जाए, या फिर आप दूसरी परिस्थिति देखिए कि बाजार में बहुत ज्यादा मांग बढ़ जाए, तो इन दोनों परिस्थितियों में क्या होता है कि कोई भी सामान जो है वो महंगा हो जाता है। एक सामान्य सी व्यवस्था है कि जिस चीज की जरूरतें बढ़ती हैं उसकी कीमत बढ़ जाएगी अगर उसके हिसाब से उसकी आपूर्ति ना हो रही हो या उसकी मांग बहुत ज्यादा हो। तो ये मुद्रास्फीति या महंगाई दर की एक परिभाषा है। इसके लिए हम लोग जो है वो एक इंडेक्स फॉलो करते हैं, एक सूचकांक का अनुसरण करते हैं। उसको हम लोग कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, खुदरा मूल्य सूचकांक। और इसमें काफी ज्यादा सामान और सेवाओं की कीमतों में जो बढ़ोतरी होती है वो देखा जाता है और उसके हिसाब से प्रतिशत निकाला जाता है। और हर महीने की 12 तारीख की शाम 4 बजे आपको आंकड़े जारी किए जाते हैं कि महंगाई की दर पिछले महीने में क्या रही है। जी शिशिर, कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, मगर उससे पहले लेंगे एक अंतराल। मार्केट मंत्र में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत। शंकर भोपाल से जुड़ रहे हैं। शंकर, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए शंकर जी। नमस्ते सर, मैं जानना चाहता हूँ जापान और चीन की इकोनॉमी आप कैसे कंपेयर करें? शंकर जी, आपकी आवाज बिल्कुल साफ नहीं आ रही, इसलिए हम आपका सवाल नहीं समझ पाए हैं, क्षमा चाहेंगे। जी, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्णिया के शीशाबाड़ी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने जीएसटी दरों में भारी कटौती की है, जो कि इस
नवरात्रि से लागू हो जाएगी। इससे रोजमर्रा में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें सस्ती हो जाएंगी, घर संभालने वाली महिलाएं अधिक सक्षम हो जाएंगी। इसलिए आइए जानें कुछ ऐसे वस्तुओं के बारे में जिन पर जीएसटी 12% से घटकर 5% हो गया है। सरकार ने 2,500 रुपए से कम मूल्य के जूते चप्पलों पर जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। सरकार ने लकड़ी, पत्थर और धातु से बनी मूर्तियों पर भी कर की दर घटाकर 5% कर दी है, जो पहले 12% की श्रेणी में थी। कांच की मूर्तियां, लोहे, एल्यूमीनियम, पीतल और तांबे से बनी कलाकृतियों पर भी इसी तरह की कटौती की गई है। मीडिया से बात करते हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट और कर विशेषज्ञ टी सुरेश ने कहा कि इन सुधारों का देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। So the reforms both in income tax and GST will definitely have a big effect on the economy, because if you see on February 1st, up to 1 lakh per month, if you are not a salaried class, you don't have to pay tax. So that means more money in the hands of the people. त्योहार के सीजन से पहले ये अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार आम आदमी पर कर का बोझ कम करेंगे और देश की अर्थव्यवस्था की गति को और अधिक बढ़ावा देंगे। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। और अब एक नजर एशियाई शेयर बाजार पर। एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुख नजर आया। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.3% और हांगकांग का हैंगसेंग सूचकांक भी लगभग 0.2% से अधिक लाभ में रहा। उधर चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स 0.2% से अधिक और सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम्स इंडेक्स भी 0.1% घाटे से बंद हुआ। जापान का निकेई सूचकांक अवकाश के कारण बंद रहा। उधर यूरोपीय बाजारों के प्रमुख सूचकांकों का रुख सकारात्मक नजर आया। फ्रांस का कैक 40 1.2% से अधिक और जर्मनी का डैक्स समाचार तैयार किए जाने तक 0.4% से अधिक लाभ के साथ कारोबार कर रहा था। वहीं अंतिम समाचार मिलने तक लंदन के FTSE 100 स्थिर रहा। And in some other stories, the Income Tax Department has dismissed a fake news circulated on the social media platforms claiming that the due date of filing income tax returns has been further extended to 30th of September from the 15th September. In a social media post, the department said that the official last date for filing ITRs remain 15th of this month. यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई उपयोगकर्ता अब एक दिन में 10 लाख रुपए तक के व्यक्ति से व्यापारी यानी पर्सन टू मर्चेंट लेन देन कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने निर्धारित श्रेणियों में व्यक्ति से व्यापारी प्रति लेन देन सीमा को बढ़ाकर अब 5 लाख रुपए कर दिया है। एनपीसीआई के पिछले महीने आए परिपत्र के अनुसार बीमा प्रीमियम, पूंजी बाजार, यात्रा तथा संग्रह और सरकारी ई मार्केट प्लेस में एक दिन के लेन देन की कुल सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। हालांकि व्यक्ति से व्यक्ति लेन देन की सीमा अभी भी बिना किसी बदलाव के साथ 1 लाख रुपए तक ही बनी हुई है। And moving on to crude now. Crude oil prices rose today. The Brent crude was trading over 0.4% up at $67.27 per barrel. And the WTI crude was also trading nearly 0.6% up at $63.04 per barrel when reports last came in. And on to bullion now. In the Indian bullion market, 24-karat gold was trading over 0.2% down at 1,09,540 rupees per 10 grams. And silver was trading around 0.3% down at 1,28,370 rupees per kilogram a short while ago. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर में आपूर्ति किए जाने वाले सोने का मूल्य समाचार तैयार किए जाने तक 0.3% घटकर 1,09,076 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर चल रहा था। वहीं दिसंबर में आपूर्ति वाली चांदी भी 0.3% घटकर 1,28,439 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। Very marginal, Shishir ji, 0.2% down to 1,09,540 rupees per 10 grams. Some reprieve for our consumers? Just a very short period thing. I mean, we all know that as the Diwali is approaching, and during this month, which we call it the Shraddh month, during this month, the buying is slightly on a lower side. So you will see the pickup after September 22 when the Navratri will start, and the real pickup we will see during just before the Deepavali, just before the Deepavali on the occasion of Dhanteras. Yes. So don't be very feeling very happy with this kind of marginal slowdown. समय हो चला है विदा लेने का निशित।
Yes. शिशिर जी, कार्यक्रम में आने और चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। चलते चलते नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों पर। The headlines: India's merchandise trade deficit narrows to $26.49 billion in August this year. Unemployment rate drops to 5.1% in August, declines for the second consecutive month, and the benchmark domestic indices end with marginal losses. Sensex declines over 100 points, Nifty settled at 25,069 rupees. And that's all from this edition of Market Mantra. From the entire team here, it's goodbye. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.